السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے جا رہی ہے اور اس میں جو چیزیں ہم ٹریڈنگ کے حوالے سے ڈسکس کریں گے ان کو اگر آپ اپلائی کریں تو آپ کے سکسس کے چانسز میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کافی حد تک بڑھ جائیں گے۔ ٹریڈنگ کو ایک لاٹری کی طرح سے نہ لیں بلکہ اس کو ایک بزنس کی طرح سے ٹریٹ کریں۔ اکثر لوگ اسکرین کے سامنے بیٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان کو یا تو کوئی ایک میجیکل ٹریڈ مل جائے جس سے وہ کروڑ پتی ہو جائیں۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کوئی بھی بزنس جو ہے وہ کسی ایک لکی کسٹمر سے نہیں چلتا۔ بزنس ہمیشہ سسٹم اور پروسیس پر چلتا ہے اور اسی طرح ٹریڈنگ بھی ایک کنسسٹنسی، پراپر پلان اور ڈسپلن پر چلتی ہے۔ اگر آپ ٹریڈز ایک کلیئر پروسیس کا حصہ نہیں سمجھ رہے تو کیا بزنس نہیں کر رہے، آپ صرف گیمبلنگ کر رہے ہیں اور گیمبلنگ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس بات کا نہیں پتا کہ آپ نے کوئی ٹریڈ کیوں لی تھی، آپ کو اس بات کا بھی نہیں پتا ہوگا کہ آپ نے ٹریڈ میں سے باہر کب نکلنا ہے۔ اپنی ٹریڈ کو اور ایگزٹ کو ہمیشہ پری پلان کریں۔ انٹری ہمیشہ کسی سالڈ ریزن پر ہونی چاہیے، نہ کہ کسی فیلنگ پر یا کسی کا دیا ہوا ایک سگنل۔ جب آپ کلیئر ہوں کہ یہ میرا انٹری کا ویلڈ ریزن ہے اور یہ میرے ایگزٹ کرنے کی کنڈیشن ہے تو ساری کنفیوژن ختم ہو جاتی۔ اس کلیئرٹی کے بغیر ٹریڈ صرف ایک گیس تکا ہے، اور یاد رکھیں ٹریڈنگ گیس کا کھیل نہیں ہے، یہ کنٹرولڈ رسک اور پلان ڈیسیژن کا گیم ہے۔ فوکس ٹریڈ کی تیاری اور اس کی ایگزیکیوشن پہ ہونا چاہیے، نہ کہ آپ پروفٹ اور لاس کی طرف زیادہ دھیان رکھیں۔ زیادہ تر نیو بگنرز یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ہر ٹریڈ میں جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مارکیٹ انپریڈکٹیبل ہوتی ہے، آپ چاہے جتنے مرضی انڈیکیٹر لگا لیں۔ اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنی ٹریڈ جیتی ہیں، بلکہ آپ نے سسٹم کو فالو کرتے ہوئے اپنے پلان کو ایگزیکیوٹ کیا ہے۔ پلان اور ایگزیکیوشن کے معاملے میں کنسسٹنٹ رہیں گے تو آخرکار پروفٹ آپ کو مل ہی جائے گا۔ مارکیٹ پریڈکشن کو پنش کرتی ہے، یہ ہمیشہ اس بندے کو کہ جو امید لگا کر بیٹھا ہے اور گیس کر رہا ہے اس کو سزا دے گی، اور ڈسپلن کو ریوارڈ کرتی ہے۔ اگر آپ کسی سسٹم کو فالو نہیں کر رہے تو آپ زیادہ تر ٹریڈز لے رہے ہیں وہ ایموشنلی بائس ٹریڈز ہیں، یعنی کہ آپ ہر ٹریڈ کے ریزلٹ سے ایموشنلی اٹیچ ہیں، تو ٹریڈنگ آپ کو ٹارچر کرے گی۔ ایک چھوٹا لاس آپ کو پرسنلی ہٹ کرے گا اور ایک چھوٹا سا ون آپ کو اوور کانفیڈنٹ بنا دے گا۔ اس طرح کی جو ایموشنل رولر کوسٹر رائڈ ہے، اس میں آپ مینٹلی طور پہ ایگزاسٹ ہو جائیں گے۔ اسٹرانگ ٹریڈر وہ ہوتا ہے کہ جو رسک کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اس لیے اگر لاس آ جائے تو پینک نہیں کرنا چاہیے، اگر ون آ جائے تو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ شو نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک ریزلٹس سے آپ ڈی اٹیچ رہیں گے آپ لاجیکل، کام اور کلیئر ہوں گے۔ اگر آپ ریزلٹ بیس چیزوں کو لے کر چلیں گے اور سسٹم پہ فوکس نہیں کریں گے تو آپ ایموشنلی زیادہ انوالو ہیں۔ اس طریقے سے آپ مینٹل پریشر کو بھی بیئر کر رہے ہیں جو آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ٹریڈس کو پلان کے ساتھ لاجیکلی ایگزیکیوٹ کریں اور ریزلٹس کو آنے دیں۔ ریزلٹس آپ کی زیادہ تر فیور میں ہی ہوں گے۔ ڈسپلن پریڈکشن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ مارکیٹ کو پریڈکٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، اور یہ بات یاد رکھیں آپ جتنے بھی ٹول استعمال کر لیں تو مارکیٹ کی پریڈکشن کے حوالے سے وہ غلط ہی ہوں گے، لیکن اگر ڈسپلن کے ساتھ آپ چیزوں کو لے کر چلیں گے تو آپ ہر چیز کو کنٹرول میں رکھیں گے۔ آپ نے رسک مینجمنٹ پراپرلی کی، کیپٹل کو پروٹیکٹ کیا اور سسٹم کو فالو کیا، آدھی ٹریڈز کی جو مسٹیکس ہیں آپ کی وہ اوور کم ہو جائیں گی اور اس سے آپ کی جو پروفیٹیبلٹی کے چانسز ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ ٹریڈنگ کا پرپز بس پریڈکٹ کرنا نہیں ہوتا یا اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنا نہیں ہوتا۔ اصل جو پرپز ہے وہ ہے کہ آپ اپنے پلان کو کنسسٹنٹلی مستقل مزاجی کے ساتھ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، اور یہی آپ کے لرننگ کا ایک بہت بڑا پارٹ بھی ہوتا ہے۔ پریڈکشن ہمیشہ لک پر ڈیپینڈ کرتی ہے، لیکن ڈسپلن ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ نیولی جب انٹر کرتے ہیں تو ان کے کچھ لاسز ہوتے ہیں، اور لاسز ہونے کے بعد وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ مارکیٹ نے شاید ان کو کسی غلطی کی سزا دی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر لاس ایک فیس کی طرح ہوتا ہے جو آپ کو سیکھنے کے لیے پے کرنی ہوتی۔ جیسے یونیورسٹی میں نالج گین کرنے کے لیے آپ کو فیس دینی پڑتی ہے، ویسے ہی مارکیٹ میں بھی لرننگ کے لیے لاس کرنا پڑتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ یونیورسٹی کی فیس جو ہے وہ ایک طرح سے فکس ہوتی ہے، لیکن یہاں پر یہ جو ایکسپینس ہے لرننگ کا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے رسک مینجمنٹ پر۔ اگر آپ چھوٹی غلطیاں کریں گے اور چھوٹے کیپٹل کے ساتھ سٹارٹ کریں گے تو چانسز یہ ہیں کہ آپ نے غلطیاں تو کرنی ہی ہیں، لیکن آپ کی غلطیوں کی جو کاسٹ ہے وہ بہت بڑی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ سارا کیپٹل کسی ایک ٹریڈ میں لگاتے ہیں، کسی پلان کو فالو نہیں کرتے، گیس ورک کرتے ہیں، پریڈکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی رسک مینجمنٹ نہیں کرتے، تو اس طرح کرنے سے آپ ایک بہت بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں، اور یہ قیمت آپ کو جلد ہی مارکیٹ سے آؤٹ کر دے گی۔ مارکیٹ میں اگر ٹاپ ٹریڈرز کی ہم دو خصوصیات کی بات کریں تو ان میں سے ایک پیشنس ہوگی، یعنی کہ صبر۔ زیادہ تر ٹریڈرز جلد بازی میں انٹری کرتے ہیں اور وہی ان کی سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے، اور جو پروفیشنل ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ ویٹ کرتے ہیں اپنے سیٹ اپ کا، ایگزیکیوشن کا۔
कभी भी हमारे एक टीचर हुआ करते थे, वो बताते थे कि जो बेस्ट ट्रेड वही होती है जो आपने ली ही नहीं होती। कभी भी अगर आपने किसी ट्रेड में 50-100% का गेन ले लिया तो उसको ये ना समझे कि आपकी बेस्ट ट्रेड है। हो सकता है मार्केट में कोई ऐसी ट्रेड हो जो उससे भी बेहतर रही हो। तो यह हमेशा इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए कि बेस्ट ट्रेड वो होती है जो आपने ली ही नहीं होती। कभी भी फोमो इफेक्ट के पीछे जाकर आपने जल्दबाजी में कोई एंट्री नहीं करनी। और इसी तरीके से बाज़ लोग अच्छी एंट्री अच्छे सेटअप पे ले लेते हैं, लेकिन वो ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाते और प्रॉफिट्स की राइड नहीं लेते और जल्दी मार्केट से एग्जिट भी कर जाते। तो पेशेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है और ये टॉप प्रोफेशनल ट्रेडर्स की खुसूसियात में से एक है। ट्रेडिंग का असल काम ही इंतज़ार करना है, मार्केट के पीछे भागना नहीं। जिस तरह रियल बिजनेस में बहुत से बिजनेसेस ऐसे हैं कि जो काफ़ी अरसे तक बिजनेस करने के बाद अपनी एक गुडविल बना लेते हैं, इसी तरीके से सर्वाइवल भी ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने एक ही ट्रेड पर अपने पूरे अकाउंट को, अपने फंड्स को, कैपिटल को रिस्क पे लगा लिया है तो ये गलती आपको मार्केट से आउट कर देगी और आपके पास कैपिटल ही नहीं होगा कि फर्दर मार्केट में कोई ट्रेड कर सके। स्मार्ट ट्रेडर हमेशा छोटे रिस्क के साथ काम करते हैं। रूल सिंपल है, ऐसा रिस्क लें जो मेंटली और फाइनेंशियली आप बर्दाश्त कर सकें। जब तक कैपिटल सेफ है तब तक आपको चांसेस मिलते रहेंगे। मार्केट हमेशा ट्रेडर्स को रिवार्ड करती है जो लंबे अरसे तक गेम में सर्वाइव कर सकते। कुछ लोग मार्केट में ओवर ट्रेड करते हैं। ज़्यादा ट्रेड लेने से ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं आते, बल्कि ज़्यादा ट्रेड्स का मतलब है ज़्यादा मिस्टेक, ज़्यादा लॉसेस और ज़्यादा स्ट्रेस। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा कम ट्रेड्स लेते हैं, लेकिन उनका जो सेटअप है वो हाई क्वालिटी सेटअप होता है। एक महीने में अगर आप 5-6 ट्रेड्स लेते हैं तो ये आपके अकाउंट को, फंड्स को, कैपिटल को ग्रो करने के लिए काफ़ी है। ट्रेडिंग में क्वालिटी पर ध्यान दें, क्वांटिटी पे नहीं। क्वालिटी हमेशा वैल्यूएबल होती है। जब आपका अपना कोई ट्रेड सेटअप नहीं होता, किसी सिस्टम को आप फॉलो नहीं कर रहे, तो आप रिलाई कर रहे होते हैं मार्केट की मूव्स पे। मार्केट के पीछे भागना एक बुरी आदत है। जब तक आप फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो इफेक्ट में रहकर ट्रेडिंग करेंगे, आपका रिजल्ट हमेशा लॉस में ही रहेगा। अगर आपसे कोई ट्रेड मिस भी हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज द एंड। मार्केट दोबारा उस लेवल पर आएगी या आपको एक अच्छे लेवल्स दिखाएगी जहाँ पे आप अपनी ट्रेड को दोबारा से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मार्केट अपॉर्चुनिटीज देती रहती है, लेकिन आपको सब्र करना होता है। स्ट्रॉन्ग ट्रेडर कभी मार्केट को चेंज नहीं करते, बल्कि कामली ऑब्जर्व करते हैं और फिर एक्ट करते हैं। प्रॉफिट और लॉस ये दोनों सेकेंडरी चीजें हैं। प्राइमरी चीज है कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, और ट्रेडिंग में सबसे पहली प्रायोरिटी कैपिटल प्रोटेक्ट करना ही है। अगर आपने कैपिटल लॉस कर दिया तो दोबारा मार्केट में खेलने का आपको चांस नहीं मिलेगा। स्मार्ट ट्रेडर हमेशा अपने लॉसेस को कंट्रोल में रखते हैं ताकि अकाउंट लाइव रहे। कैपिटल के बगैर कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कोई सेटअप नहीं, कोई इंडिकेटर काम नहीं करता। कैपिटल इज द ब्लड इन द मार्केट। कैपिटल जब तक आपके पास है, आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी, सिस्टम, तमाम चीज़ों को लेकर चल सकते हैं, और ये सर्वाइवल गेम के लिए बहुत बेसिक कंडीशन है। चेंज होती मार्केट के साथ अपने आप को अडॉप्ट करना सीखें। चेंज इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ कांस्टेंट। और जो स्ट्रेटजी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और फ्लेक्सिबल नहीं है, दैट मीन्स कि आप मार्केट की कंडीशंस के साथ अपने आप को, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं कर रहे। आपने मार्केट को ऑब्जर्व करना होता है और अकॉर्डिंगली अपनी जो अप्रोच है उसको एडजस्ट करना होता है। अडॉप्टिव माइंड के साथ ही आप मार्केट में अपनी चांसेस, प्रॉफिट के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। इको ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप ये सोचने लगोगे कि मैं हमेशा सही हूँ या मार्केट मुझे गलत साबित नहीं कर सकती, तो आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। मार्केट किसी के सामने नहीं झुकती, चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो। स्ट्रॉन्ग ट्रेडर हमेशा हम्बल रहता है, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करता है और ईगो को कंट्रोल में रखता है। ट्रेडिंग में जीतने वाला वही है जो ईगो को पॉकेट में डालकर स्क्रीन के सामने बैठा रहे। सैलरीड पर्सन हमेशा इनकम को एक बल्क में देखता है, जैसे उसको मंथ की एंड पे सैलरी मिलती है एक ही इंस्टॉलमेंट में। इसी तरीके से जो इसके अपोजिट जो बिजनेसमैन होता है, वो छोटे छोटे इनकम को, छोटे प्रॉफिट्स को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो या शॉप ऑनर हो। ट्रेडिंग में भी एक दिन के बड़े प्रॉफिट से कुछ नहीं होता। असल सक्सेस ये है कि आप रेगुलर स्मॉल प्रॉफिट्स को बुक करते रहें और अपने लॉसेस को कंट्रोल में रखें। बिगनर्स सब कुछ एक दिन में कमाना चाहते हैं और फिर लॉस भी उनके ऐसे ही होते हैं। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं हमेशा लॉन्ग टर्म मुस्तकिल मिजाजी पर फोकस करते हैं। जैसे खरगोश और कछुए की रेस में खरगोश हार जाता है और कछुआ जीत जाता है, क्योंकि कछुआ मुस्तकिल मिजाज होता है।
इसी तरीके से जो ट्रेडिंग है उसमें भी आपने स्लोली और मुस्तकिल मिजाजी से अपनी रेस का पार्ट बनना होता है और रेस को कंटिन्यू करना। जब आपके पास चॉइसेस कम होती हैं तो आपको फैसला करने में आसानी होती है, लेकिन चॉइसेस बढ़ने से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो जाती हैं। इसी तरह मार्केट में भी लातादाद हज़ारों इंडिकेटर्स, आपने उनमें से 1, 2, 3 इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं या जो भी आपके ट्रेड के लिए सूटेबल हैं। ये ऐसा ही है जैसे वर्क प्लेस पे जाने के लिए आपने गाड़ी का इस्तेमाल करना है, लेकिन आप हर गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने एक सर्टेन ट्रैक इस्तेमाल करना है जो आपको आपके डेस्टिनेशन तक लेकर जाएगा। वो ट्रैक आपका सिस्टम है और वो गाड़ी आपका इंडिकेटर है। ज़्यादा इंडिकेटर, ज़्यादा चार्ट्स और कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस सब कंफ्यूजन पैदा करते हैं। मार्केट सिंपल है लेकिन ट्रेडर्स खुद इसे मुश्किल बना लेते हैं। स्मार्ट ट्रेडर हमेशा अपनी स्ट्रेटजी सिंपल रखता है ताकि वो अपने डिसीजन को क्लियर कर सके। जितना ज़्यादा आप चार्ट्स को डेकोरेट करेंगे इतना ज़्यादा आप डाउटफुल हो जाएंगे। सिंपल सेटअप हमेशा ज़्यादा रिलायबल होते हैं। हमारे टीचर कहा करते थे कि मसलों को किसी जगह लिख लेने से मसले का आधा हल निकल आता है। हर ट्रेड को नोट करें, एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों लिया, रिजल्ट क्या निकला और आपकी इमोशनल स्टेट क्या थी। ये जर्नल एक तरह से आपका पर्सनल टीचर होगा। बिगनर्स अक्सर ये स्टेप स्किप कर देते हैं और बार बार वही मिस्टेक रिपीट करते हैं, लेकिन जब आप अपनी ट्रेड्स को लिखते हैं तो आपको एक खास पैटर्न बनता दिखाई देता है। जर्नल वो चीज़ है जो सिंपल एक्सपीरियंस को पावरफुल विजडम में बदल देती है। नो डाउट आपको इंडिकेटर्स और स्ट्रेटजीज से कुछ हेल्प मिलती है, लेकिन असल जो हकीकत है वो ये है कि ट्रेडिंग का असल खेल मेंटल डिसिप्लिन और साइकोलॉजी का है। स्ट्रेटजी तो सबको मिल जाती है, लेकिन कंट्रोल, पेशेंस और इमोशनल बैलेंस बहुत कम लोगों के पास होता है। जो इमोशनल स्टेट सबसे ज़्यादा लोगों का नुकसान मार्केट में करवाती हैं, उनमें फियर, ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस है। स्मार्ट ट्रेडर वो है जो अपने माइंड को कंट्रोल करता है। मार्केट पर कंट्रोल करने की कोशिश मत करें, अपने आप पर कंट्रोल करना सीख, क्योंकि मार्केट्स 80% साइकोलॉजी और 20% स्ट्रेटजी पे काम करती हैं। स्टॉप लॉस को इग्नोर करना सुसाइड है। बहुत से ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि वो स्क्रीन के सामने बैठकर मैनुअली एग्जिट कर लेंगे, लेकिन मार्केट आपके इमोशंस के साथ खेलती है और ऐसी रियल सिचुएशंस में मार्केट कभी भी आपको ट्रेड से एग्जिट करने का मौका ही नहीं देती। या तो वो स्लोली नीचे की तरफ मूव करती जाती है और आप अपना जो ट्रेड है उसको देखते रहते हैं और एक वक्त में जाकर अपने लॉस को बहुत बॉटम पे बुक करते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा ऑटोमेटिकली सेट होना चाहिए ताकि एक बैड ट्रेड पूरे अकाउंट को न खा जाए। ट्रेडिंग का पहला रूल है कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, और कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का सबसे पावरफुल टूल है स्टॉप लॉस। विदाउट स्टॉप लॉस आप जस्ट गैम्बलिंग कर रहे हैं। ओवर ट्रेडिंग आपके कैपिटल को दीमक की तरह खाती है। जब आप बार बार ट्रेड लेते हैं एक्साइटमेंट में या बोरियत की वजह से, तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो कम होती जाती है। हर क्लिक पर, हर ट्रेड पर आपकी फीस होती है, कमीशन होता है और मेंटल एनर्जी जो होती है वो कंज्यूम होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा क्वालिटी सेटअप पर लिमिटेड ट्रेड्स लेते, मार्केट के पीछे भागने के बजाय काम रहते हैं और वेट करते हैं अपने सेटअप को एग्जीक्यूट करने का। मार्केट में सबसे बड़ा एज जो आपको मिलता है वो ट्रेंड का मिलता है। मार्केट हमेशा किसी डायरेक्शन में चल रही होती है, या तो ये अप ट्रेंड में होती है, डाउन ट्रेंड में होती है या साइडवेज होती है। स्मार्ट ट्रेडर कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएगा। अक्सर मार्केट ऊपर जा रही होती है तो कुछ ट्रेडर जिद लगाकर सेल करने की या शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, और इसी तरीके से जब मार्केट नीचे को जा रही होती है तो वो वहाँ बाय करने की कोशिश करते हैं। या तो वो मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं या ईगो में आकर ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे होते हैं। ट्रेंड के साथ रहना हमेशा ज़्यादा सेफ और प्रॉफिटेबल होता है, और ट्रेंड का गोल्डन रूल यही है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर आम जिंदगी में देखें तो इंतकाम एक इमोशनल स्टेट है। इसी तरीके से ट्रेडिंग में रिवेंज ट्रेडिंग एक बिगनर की सबसे बड़ी मिस्टेक है। जब कोई लॉस आता है तो वो ट्रेडर फौरन सोचता है अगली ट्रेड से वो इस लॉस को रिकवर करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये सोच डेंजरस है। क्यों? क्योंकि आप इमोशनल स्टेट में इस चीज़ को सोच रहे हैं। इमोशनल ट्रेडर हमेशा जल्दी में डिसीजन लेता है और मज़ीद लॉस करता है, और एक अच्छा ट्रेडर हमेशा एक लॉस के बाद ब्रेक लेता है, एनालाइज करता है और सिर्फ तब वापस आता है जब उसका सेटअप उसको क्लियर मिलता है और सिस्टम के अकॉर्डिंग वो सेटअप अलाइन करके अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है। नो डाउट छोटे प्रॉफिट्स को भी बुक करते रहना ठीक रहता है, लेकिन अगर आपको पता हो कि एक स्पेसिफिक स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया या इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया है, मार्केट बुल रन में है, कंपनी में जिस कंपनी का स्टॉक है कोई मेजर डेवलपमेंट आपको नजर आ रही है, उसके बावजूद आप अगर छोटे प्रॉफिट बुक करते हैं इतनी पॉजिटिविटी के बावजूद, तो इसका मतलब ये है कि आप ट्रेडिंग को गलत तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि अनएक्सपीरियंस ट्रेडर ज्यादातर इस चीज को फॉलो करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर इसका बिल्कुल अपोजिट करते हैं। वो छोटे लॉसेस को जल्दी बुक कर लेते हैं और प्रॉफिट्स को जल्दी बुक नहीं करते।
अर्ली ऑन जो ट्रेडर होता है वो लॉसेस को तो होल्ड कर लेता है लेकिन प्रॉफिट को जल्दी बुक कर लेता है। प्रॉफिट को ब्रीदिंग स्पेस दें ताकि वो बड़ा हो सके। जितना आप उनको टाइम देंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे, अपनी स्ट्रेटेजी जो भी आपने रखी है रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से उसको लेकर चलेंगे, तो आप लॉसेस को अर्ली बुक कर लेंगे और प्रॉफिट्स को आप चलने देंगे ताकि आपका कैपिटल ग्रो कर सके। कभी अपनी लॉस की पोजीशन को एवरेज ना करें, हमेशा जो पोजीशन आपकी प्रॉफिट में उसको एवरेज करें। उसकी रीज़न ये है कि अगर एक स्टॉक 100 रुपये से 90 रुपये पे जा सकता है तो वो 50 रुपये पे भी जाने की सलाहियत रखता है, और इसी तरीके से अगर 50 रुपये का स्टॉक 100 पे जा सकता है तो वो 150 पर भी जाने की सलाहियत रखता है। लेकिन हर शख्स का अपना मार्केट को देखने का, स्टॉक को देखने का, या फंडामेंटल चीज़ों को आप इग्नोर ना करें। अच्छी कंपनी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके जो मोमेंटम है उस स्टॉक का या जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा ही होते हैं। लेकिन आप अगर किसी बेटिंग स्टॉक में बैठे हुए हैं तो उसमें पहली तो बात यह है कि आप ऐसे स्टॉक में ट्रेड ना करें, और अगर कर भी रहे हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करें और अपनी ऊपर की जो पोजीशन है पॉजिटिव प्रॉफिट की पोजीशन उसको भी एवरेज करने की ज़रूरत नहीं है। प्लान दी ट्रेड एंड ट्रेड दी प्लान, यानी कि अपनी ट्रेड को पहले प्लान करें और उस प्लान को फिर जल्दी से चेंज ना करें। अदरवाइज आप इमोशनली बाइस्ड होकर उसको चेंज करेंगे और आप ना उससे कुछ सीखेंगे और ना वो जो प्लान होगा उस पर आप फुली कॉन्फिडेंट होंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी प्लान के बगैर ट्रेड नहीं करते। हर ट्रेड के लिए एक वाज़ेह स्टॉप लॉस, एंट्री पॉइंट और एक टारगेट होना चाहिए। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का मतलब ही यही है। जैसे कहते हैं कि सक्सेस एक सफ़र का नाम है, जैसे मंजिल पर पहुंचकर ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहती, इसी तरह ट्रेडिंग जो है उसमें भी इम्पोर्टेंट रूल यही है कि ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का ज़रिया मत समझें। अगर आपकी दिलचस्पी सिर्फ प्रॉफिट में है तो जब भी आपको लॉस होगा तो वो आपको टॉर्चर लगेगा। लेकिन अगर आप प्रोसेस से दिलचस्पी रखते हैं, चार्ट्स देखने में, मार्केट को समझने में, इकोनॉमिक्स को समझने में, बिजनेस को समझने में, तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे और प्रॉफिट नेचुरली आपको आएगा। स्ट्रॉन्ग ट्रेडर वो है जो जर्नी को एंजॉय करता है, ना कि सिर्फ डेस्टिनेशन को। सो एंजॉय द प्रोसेस, लव द प्रोसेस, नॉट जस्ट द प्रॉफिट। ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक जर्नी है। अगर आपने डिसिप्लिन, पेशेंस और प्रोसेस को अपनाया तो मार्केट आपको रिवार्ड देगी। ये चॉइस अब आपके हाथ में है। इन एक्सपीरियंसेस को, रूल्स को अपनाएंगे तो आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाएंगे, या फिर वही गलती रिपीट करेंगे जो बहुत सारे लोग करते हैं। फ्यूचर हमेशा उन लोगों का होता है जो अपनी ईगो को कंट्रोल करते हैं और प्रोसेस से मोहब्बत करते हैं या प्रोसेस को लाइक करते हैं। ट्रेडिंग को गेम मत समझिए, इसे बिजनेस बनाएं। प्रॉफिट टेम्पररी है लेकिन डिसिप्लिन हमेशा परमानेंट रहता है।